Hello friend, today we will see application of steady flow energy equation to the various devices. Okay, but before starting this, let me repeat some basics about steady flow energy equation or what we have learned until now. Steady and unsteady flow, very simple flow in which all the parameters or all the properties are constant with respect to time, then that type of flow is called steady flow. And if properties are not constant with respect to time, then that type of flow is called unsteady flow. Very simple. Now these are the assumptions which we made to derive a steady flow energy equation. The mass flow through the system is remains constant, means same mass will be go out. Fluid is uniform in composition. फ्लूइड का कंपोजिशन सेम रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा इसमें कंपोजिशन में. द ओनली इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर वर्क एंड हीट, मीन्स from system to surrounding only work and heat can go out, or from surrounding to system only work and heat will interact. Okay, means apart from work and heat, nothing will go out of the system or nothing will come into the system. Only work and heat are exchangeable in between system and surrounding. Okay, now and most important, we are considering only potential, kinetic and flow energy. All other energies are neglected. Now we have derived a steady flow energy equation. Okay, so we got this m h1 plus gz1 plus v1 square by 2 plus q dot equals to m h2 plus gz2 plus v2 square upon 2 plus w dot. So this is nothing but the steady flow energy equation on unit time basis. Okay, and if we assume this equation on unit mass basis, then mass will be taken common and cancel with each other, so we will get this new equation. This is also steady flow energy equation on unit mass basis. So important thing about these two equations are that the unit of all the quantities in this equation, which is unit time basis, is kilojoule per second. मीन्स जो भी यहाँ पर आपको दिखेगा उसका यूनिट किलोजूल पर सेकंड है, क्योंकि यूनिट टाइम बेसिस है. सिमिलरली ये जो यूनिट मास बेसिस है उसकी हर क्वांटिटी का यूनिट किलोजूल पर केजी. ओके, सो ये हमने अब तक देखा था. अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. तो हमें ये जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ये वेरियस डिवाइसेस को अप्लाई करना है. ओके, so these are the main devices. Okay, compressor, condenser, boiler, turbine, nozzle and pump. So I think सबको मालूम है कि कंप्रेसर क्या होता है. कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर को हम वर्क सप्लाई करते हैं और उस वर्क का यूज़ करके कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक लेवल के एयर को प्रेशराइज करता है. ओके, मतलब कंप्रेस करता है और उसका प्रेशर बढ़ाता है. क्लियर? सो compressor is work consuming devices. Okay, so what is function of compressor? It compresses the air from atmospheric level to high extent. Okay, by using work. मतलब हम कंप्रेसर को जब तक वर्क नहीं देंगे तब तक कंप्रेसर एयर को प्रेशराइज नहीं कर पाएगा, एयर का प्रेशर बढ़ा नहीं पाएगा. ओके ओके, दूसरा है स्टीम, दूसरा है कंडेंसर. सो व्हाट इज कंडेंसर? कंडेंसर इज डिवाइस इन विच steam is condensed, or in short steam is converted into water. So कंडेंसर कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको एक सिंपली बताता हूँ. आपको थर्मल पावर प्लांट पता है. थर्मल पावर प्लांट के 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है बॉयलर, दूसरा होता है टरबाइन, तीसरा होता है कंडेंसर और चौथा होता है पंप. So what happen in thermal power plant? We are supplying heat to the boiler. Okay, by using this heat, boiler converted water into steam. Boiler के अंदर जो भी water है वो steam में convert होगा. Now this high pressure steam goes to the turbine where it expand on turbine blade. Because of that turbine shaft move. मतलब वो pressure
का कन्वर्जन वर्क डन में होता है। यहाँ पे टरबाइन शाफ्ट रोटेट होने लगेगा। ओके, सो टरबाइन इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, रिमेंबर दिस। सो यहाँ पर टरबाइन में क्या होता है, जो भी स्टीम बॉयलर से आ रही है वो टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी, उसकी वजह से टरबाइन का ब्लेड रोटेट होगा और टरबाइन का ब्लेड शाफ्ट के ऊपर प्लेस किया रहता है। तो टरबाइन के ब्लेड के रोटेट होने के साथ शाफ्ट भी रोटेट होता है, मतलब वहाँ पे मैकेनिकल वर्क जनरेट होगा। समझ में आ गया? अब चूंकि ये हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन के ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक हो गई है, वहाँ पर वो एक्सपांड हो रही है, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाता है। तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम देन गोज टू द कंडेंसर। यहाँ पर क्या होगा, जो भी एग्जॉस्टेड स्टीम है, जो भी लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम है, वो कंडेंसर में आएंगी। कंडेंसर में क्या होगा, वो अपनी हीट एटमॉस्फेयर को दे देगी। ये जो स्टीम है अपनी हीट एटमॉस्फेयर को दे देगी, तो उसमें से जब अगर हीट निकल जाएंगी तो वो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो नाउ सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ कंडेंसर? इट कंडेंसेस द स्टीम। कंडेंस होना मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टीम एटमॉस्फेयर को हीट रिजेक्ट करती है और लिक्विड फॉर्म में आती है। ओके, मतलब यहाँ पे स्टीम का फेज चेंज हो रहा है। स्टीम मतलब गैसेस से लिक्विड स्टेज में आ रही है। अब ये जो स्टीम से लिक्विड फेज हुई है, तो ये लिक्विड फिर पंप की तरफ आएगा, पंप उसे फिर बॉयलर की तरफ सप्लाई करेगा। ओके, तो पंप पंप को हम बाद में देखेंगे। समझ में आया कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर में कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के लिए आपको कोई भी वर्क सप्लाई नहीं करना पड़ता है, या कंडेंसर भी आपको कोई वर्क देता नहीं है। जैसे टरबाइन में आपको वर्क मिला, वैसे कंडेंसर में नहीं मिलता है। और जैसे कंप्रेसर के लिए वर्क चाहिए होता है रन करने के लिए, वैसे कंडेंसर के लिए नहीं चाहता है, नहीं लगता है। इट इज़ जस्ट सिंपली अ हीट एक्सचेंज प्रोसेस, विदाउट एनी वर्क रिक्वायर्ड हीट एक्सचेंज हो जाती है। तो कंडेंसर क्या हुआ? कंडेंसर हुआ नाइदर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस नॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। बराबर, कंडेंसर में वर्क कंज्यूम भी नहीं हुआ और वर्क प्रोड्यूस भी नहीं हुआ, सिंपली हीट एक्सचेंज हो गई। ओके, सिमिलरली बॉयलर। ओके, बॉयलर में क्या होता है? बॉयलर इज ए डिवाइस इन विच लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ओके, बाय यूजिंग हीट। हम बॉयलर को हीट देते हैं, वो हीट की यूटिलाइजेशन की वजह से वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज होने से वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। बॉयलर चलाने के लिए आपको कोई भी वर्क देने की ज़रूरत नहीं होती है, या बॉयलर भी आपको कोई वर्क देता नहीं है। तो सिमिलरली बॉयलर ऑल्सो नाइदर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस नॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। बॉयलर वर्क कंज्यूम भी नहीं करेगा और वर्क प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। ओके, नाउ फोर्थ इज टरबाइन। टरबाइन में क्या होता है? टरबाइन में एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर ब्लेड रहते हैं। तो स्टीम या इस शाफ्ट के ऊपर स्ट्राइक होती है हाई प्रेशर स्टीम, जिसकी वजह से ये शाफ्ट घूमने लगता है। ओके, मतलब ये स्टीम की जो भी काइनेटिक एनर्जी वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। ओके, सो टरबाइन इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ओके, नेक्स्ट इज नोजल। नोजल में क्या रहता है? नोजल इस शेप में रहता है, पाइप को लगाते इधर, इधर से वाटर आता है, और बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूसिंग एरिया, ये जो वाटर की प्रेशर एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, मतलब जो लो स्पीड से वाटर आता है, इस नोजल की वजह से वो हाई स्पीड में बाहर चला जाता है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि हम जब गाड़ी को वॉशिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हाई प्रेशर से वाटर आता है, तो वो पाइप को आगे नोजल लगा रहता है। इसी वजह से जो हल्का से भी उसका स्पीड रहता है, नोजल की वजह से वो बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर में जो प्रेशर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिर्फ एक डिवाइस है जिसका एरिया कम होता है, तो आपको उसको सिंपली पाइप को लगाना है। उससे क्या होगा, पाइप के अंदर जो भी वाटर फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि उसका प्रेशर एनर्जी कम हो जाता है। तो सिमिलरली नोजल इज ऑल्सो नाइदर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नॉर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, मतलब नोजल चलाने के लिए आपको वर्क देना नहीं पड़ता है। और लास्ट में पंप। ओके, पंप क्या करता है? ये शाफ्ट घूमता है, इसको ब्लेड रहते हैं। तो जैसे ये जो नीचे से वाटर आता है,
पंप उसको एनर्जी दे के ऊपर लिफ्ट करता है, बराबर। पंप उसको एनर्जी दे के उसका प्रेशर बढ़ाता है, जिससे वो ऊपर चला जाता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल लेंगे, कुआं है, वेल रहती है अपनी, उधर से अपन बटन दबाते हैं मोटर का, मोटर चालू होती है, मोटर बोल तो पंप, पंप चालू होता है और पानी ऊपर आता है। या बोर का ले लो, अपने घर पे बोर रहता है, हम बटन दबाते हैं, पंप चालू हो जाता है और पानी ऊपर आता है, क्या 200 फीट 300 फीट कितना भी हो। मतलब उस पंप की वजह से वो नीचे के वाटर का प्रेशर बढ़ता है और वो ऊपर आ जाता है। ये कब होता है? जब हम बटन दबाते हैं, मतलब जब हम उसको इलेक्ट्रिक वर्क सप्लाई करते हैं, बराबर। मतलब जब जब तक हम पंप को वर्क सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वर्क काम नहीं करता है। जैसे कंप्रेसर के जैसा है, कंप्रेसर और पंप दोनों को भी हमें इलेक्ट्रिक वर्क देना होता है, तभी वो दोनों काम करते हैं। क्लियर? और कंडेंसर, बॉयलर और नोजल, इनको हमें कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क देना नहीं पड़ता है। इनका कोई भी बटन नहीं रहता है कि वो बटन दबाए ही चालू हो जाए। तो ये बिना वर्क का ही अपना काम कर देते हैं, बाय एक्सचेंजिंग जस्ट हीट। और नोजल तो क्या, एक डिवाइस रहता है जिसका एरिया कम कम होते जाता है, उसमें भी वर्क देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। सो कंप्रेसर और पंप, इसको हमें वर्क देना होता है, इसीलिए कंप्रेसर और पंप दोनों वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। और टरबाइन, टरबाइन से हमें वर्क मिलता है, मतलब स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक होती है, उससे वर्क जनरेट होता है। तो टरबाइन क्या हुआ? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। समझ में आ गया? क्लियर? अब तक हमने सब बेसिक देख लिए। अब हम वन बाय वन देखेंगे। सो मैंने आपको पहले बताया कंप्रेसर का काम क्या होता है। इट जस्ट कंप्रेसेस द एयर टू हाई प्रेशर बाय यूजिंग एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिक वर्क हम उसको सप्लाई करते हैं, उससे वो एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट होता है। इसके दो टाइप है, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एयर को, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, पिस्टन के मूवमेंट से एयर का वॉल्यूम कम होता है और उसका प्रेशर बढ़ता है। क्लियर? तो सिंपली हमें याद रखना है कि एक ही चीज़ याद रखनी है कि कंप्रेसर में हम वर्क सप्लाई करते हैं तभी वो काम कर पाता है। ओके। अब देखो, अब हम इसका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, क्लियर? सो दिस इज अवर जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो हम कंप्रेसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। समझो हमारे पास एक कंप्रेसर है, जिसका मैं आपको जो डायग्राम मालूम है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लेंगे। ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ये पिस्टन है। यहाँ से एयर अंदर आ रही है, सॉरी, यहाँ से एयर अंदर आ रही है। जब जब पिस्टन नीचे आएगा, एयर अंदर आएगी, पिस्टन ऊपर जाने के बाद एयर कंप्रेस होगी, तब इनलेट वाल्व बंद होगा और आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर चली जाएंगी। समझ में आ गया ये बात? तो अब हम अज्यूम करेंगे कि हमारा डेटम लाइन यहाँ पर है। तो ये हो गया सेक्शन 1, सेक्शन 1। तो ये हो गया Z1 और ये हो गया Z2। और 1 सेक्शन के सभी प्रॉपर्टीज़ को हम 1 से डिनोट करेंगे। एंथैल्पी रहे तो H1, वेलोसिटी रही तो V1, डेटम रहा तो Z1, लाइकवाइज। और जो 2 है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एंथैल्पी H2, डेटम Z2, वेलोसिटी V2। क्लियर? अब हम अज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा कंप्रेसर है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब इनलेट और आउटलेट एक ही लेवल पे रहेंगे, मतलब Z1 इक्वल्स टू Z2, बराबर। तो इसमें Z1 Z2 बाद में कैंसिल हो जाएंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, यहाँ पर नहीं। जब हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो Z1 माइनस Z2 जीरो हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये कंप्रेसर हॉरिजॉन्टल है ऐसा हमने अज्यूम किया, तो तब उसका मतलब क्या निकलेगा कि Z1 इक्वल्स टू Z2, जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये इक्वेशन में Z1 Z2 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गया ऐसा, M(H1), इसमें Z1 चला गया, V1²/2। अब ये माइनस क्यू क्यू है वो बताता हूँ आपको, इक्वल्स टू M(H2) प्लस V2²/2 माइनस W। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? ये हमारी सिस्टम है। अगर सिस्टम में हीट आती है, इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तब हीट पॉजिटिव है। ओके। और अगर सिस्टम से हीट बाहर जाती है, मतलब अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है, तो वो हीट नेगेटिव है। समझ में आ गया है?
अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट पॉजिटिव है, अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो हीट नेगेटिव है। मतलब हीट अगर सिस्टम में जा रही है तो पॉजिटिव है, सिस्टम से बाहर आ रही है तो नेगेटिव है। अब इस ये हमारा साइन कन्वेंशन है, हमने एज्यूम किया है। अब देखो वर्क के बारे में बिल्कुल उल्टा, अगर वर्क हमने सप्लाई किया, अगर वर्क हमने सिस्टम को सप्लाई किया तो वर्क नेगेटिव है। और यदि वर्क सिस्टम ने हमें सप्लाई किया तो वर्क पॉजिटिव है। बराबर, अगर हम सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो निगेटिव, अगर सिस्टम हमें वर्क दे रही है तो पॉजिटिव। मतलब इसका इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिस्टम वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, मतलब उसको वर्क लग रहा है, तो उसके लिए डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वर्क हम सिस्टम को दे रहे हैं। अगर सिस्टम वर्क प्रोड्यूसिंग है, मतलब सिस्टम से वर्क प्रोड्यूस होके हमें मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव है। समझ में आ गया? तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर हीट सप्लाइड है तो पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड है तो नेगेटिव, अगर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो डब्ल्यू नेगेटिव, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो डब्ल्यू पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो, ये इसीलिए अब देखो, जब कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है मतलब उसकी उसकी हीट बढ़ती है, तो वो हीट बाहर रिजेक्ट कर देगा। बराबर, हम कूलिंग जैकेट लगाते हैं कंप्रेसर को, तो कूलिंग जैकेट वो हीट ले लेता है, मतलब कंप्रेसर से हीट बाहर आ रही है। बराबर, इन शॉर्ट कंप्रेसर इज रिजेक्टिंग हीट, कंप्रेसर हीट को रिजेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर Q माइनस है। समझा? कंप्रेसर से हीट बाहर आ रही है या कंप्रेसर हीट रिजेक्ट कर रहा है। क्लियर? नाउ कंप्रेसर इज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, मतलब हम कंप्रेसर को इलेक्ट्रिक वर्क दे रहे हैं तभी कंप्रेसर काम कर रहा है। मतलब वर्क कंप्रेसर के अंदर जा रहा है, कंप्रेसर हमारे सिस्टम में, वर्क कंप्रेसर के अंदर जा रहा है, मतलब वर्क क्या आएगा, निगेटिव, इसीलिए डब्ल्यू यहाँ पर निगेटिव। क्लियर? अब डब्ल्यू को एक साइड में रख दिया, ये डब्ल्यू इधर गया पॉजिटिव, डब्ल्यू इस साइड में गया तो पॉजिटिव होगा, तो और ये इधर आ गया, तो देखो यम H2 प्लस वी टू स्क्वायर माइनस यम H1 प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस क्यू, ये क्यू इस साइड में आ गया इसलिए प्लस में हो गया। सो दिस इज दी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर कंप्रेसर। समझ में आ गया? अगर अज्यूम कर लो कि कंप्रेसर से हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है, तब हम क्यू क्या रखेंगे, ज़ीरो। अगर हीट रिजेक्ट हो रही है तो जो भी है वो माइनस में, अगर नहीं हो रही है तो क्यू ज़ीरो। क्लियर? ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, रेसिप्रोकेटिंग का भी सेम आएगा। देखो, उसमें भी क्यू, उसमें भी क्यू और डब्ल्यू निगेटिव है, क्योंकि उसको भी वर्क लगता है। अब नेक्स्ट एक कंडेंसर। देख कंडेंसर में क्या रहता है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एक मिनट। कंडेंसर में क्या होता है, जो स्टीम है देखो नीचे से अंदर आ रही है, और ये जो ट्यूब है इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है जो बाहर से आता है, कूलिंग वाटर, तो स्टीम इस कूलिंग वाटर को हीट दे देगी, तो उससे क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर कम होगा और कूलिंग वाटर का बढ़ेगा, तो हॉट कूलिंग वाटर यहाँ से बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। ओके, और जो स्टीम है इधर से उसका टेम्परेचर कम कम होने की वजह से वो स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो लिक्विड इधर ऊपर चला जाता है। क्लियर? यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, हम वर्क सप्लाई नहीं कर रहे, वाटर और स्टीम एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, वाटर हॉट होके बाहर जा रहा है, स्टीम कूल होके लिक्विड होके बाहर जा रही है। समझ में आ गया? अब इस दोनों केस में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर हमने एक मिनट, ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ। कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर, मतलब स्टीम से लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो उसमें कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, वर्क ज़ीरो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाइदर वर्क कंज्यूमिंग नॉर वर्क प्रोड्यूसिंग, उसके लिए हमें कोई वर्क लगता नहीं, वो भी हमें वर्क देता नहीं। और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निग्लिजिबल है, ज़्यादा वेलोसिटी में घूमते नहीं है और हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए काइनेटिक और पोटेंशियल हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाहर से कोई भी हीट नहीं आ रही। ओके, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वन फ्लूइड टू द अनदर फ्लूइड, सो हीट इज टेकन नेगेटिव। अब देखो कंडेंसर से हीट बाहर जा रही है एटमॉस्फेयर में,
तो क्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, समझे। सो दीज आर दी बेसिक और जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, अब इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी निगलेक्ट कर दिया हमने, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, और ये W यहाँ पर 0 है, क्लियर। बचा क्या, MH1, और जो Q है, हीट है जो कंडेंसर से बाहर जा रही, तो माइनस आएगा वो, ठीक है। तो बचा क्या, MH1 माइनस क्यू इक्वल्स टू H2। यम यम कैंसिल कर दिया, H1 माइनस क्यू इक्वल्स टू H2, या Q इक्वल्स टू H1 माइनस H2। okay, so this is the simplified steady flow energy equation for condenser, clear। now next is boiler। बॉयलर और कंडेंसर सेम है। कंडेंसर में क्या होता है, स्टीम लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट होती है, और बॉयलर में क्या होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, एक दूसरे के उल्टा काम करते हो। इसको भी बॉयलर चलाने के लिए भी वर्क नहीं लगता है, बॉयलर में सब वो स्टेडी रहता है, तो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी निग्लेजिबल है। और बॉयलर के अंदर हीट जा रही है, मतलब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कट हो गया, डब्ल्यू भी कट हो गया क्योंकि जीरो है। बचा क्या, MH1 प्लस क्यू इक्वल्स टू MH2। ओके, सो Q इक्वल्स टू MH2 माइनस H1, ये आपको फार्मूला आएगा। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर बॉयलर। ओके, सो नेक्स्ट इज टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस होता है, क्लियर। टरबाइन में हीट सप्लाई भी नहीं करते, हीट रिजेक्ट भी नहीं करते, तो Q टरबाइन में जीरो आएगा। टरबाइन में Q जीरो और W आएगा पॉजिटिव, क्योंकि टरबाइन इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अब देखो, टरबाइन भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और टरबाइन के अंदर जो स्टीम आ रही है और बाहर जो स्टीम जा रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बचा, यम यहाँ पर क्यू ज़ीरो आएगा, क्योंकि टरबाइन में हीट देते भी नहीं, निकलती भी नहीं है। ओके, और डब्ल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, टरबाइन हमें वर्क दे रहा है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू MH1 माइनस MH2, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज नोजल। नोजल का मैंने पहले बताया आपको, नोजल भी, नोजल में डब्ल्यू ज़ीरो है, क्योंकि वो वर्क प्रोड्यूस करता भी नहीं, वर्क लगता भी नहीं, हीट बाहर जाती भी नहीं, हीट का उसका कुछ कंसर्न नहीं है। और अगर वो हॉरिजॉन्टल है, Z1 इक्वल टू Z2 बराबर डब्ल्यू ज़ीरो क्यू ज़ीरो और Z1 Z2 ज़ीरो। तो क्या बचा, H1 प्लस V1 स्क्वेयर इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वेयर। मास मास कैंसिल कर दिया मास को। अब देखो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आएगा, थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पर मैं, तो ऊपर लेके ये इक्वेशन पे देखो, हम लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं V2 स्क्वेयर, ये जो V1 इस साइड में आ गया, V1 स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स टू H1 माइनस H2। अब ये दो इधर गया, तो क्या हुआ, V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 2H1 माइनस H2। अब ये माइनस V1 स्क्वेयर इधर गया, तो वो प्लस V1 स्क्वेयर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, V2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 2H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वेयर। समझ में आ गया, या फिर से लिखूं, ये V1 को V1 स्क्वेयर बाय 2 को हमने इधर भेजा, और H2 को हमने इधर भेजा, तो ये क्या होगा, V2 स्क्वेयर बाय 2 माइनस V1 स्क्वेयर बाय 2। ओके, और इस साइड में थोड़ा सा धीरे धीरे लिखता हूँ, अब वो आएगा V1 स्क्वेयर माइनस, सॉरी, V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स टू H1 माइनस H2। ओके, अब ये 2 इधर गया, तो ये आएगा 2H1 माइनस H2, और यहाँ पर क्या आएगा,
V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। अब V2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 2H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वेयर। अब ये V2 का स्क्वायर है, अभी हमें V2 चाहिए तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट में ये वाली टर्म 2H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर। सो दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नोजल। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ये जो V1 है, V1 मतलब ये सेक्शन 1 हो गया इनलेट का और सेक्शन 2 आउटलेट का। जो इनलेट की वेलोसिटी रहती है नोजल में, वो आउटलेट की वेलोसिटी से बहुत कम रहती है। मतलब V1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतनी कम रहती है। फॉर एग्जांपल V2 अगर 700 रहा तो V1 रहता है 2 या 3। ओके, तो हम V1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू H1 माइनस H2, जस्ट क्योंकि हमने V1 को नेग्लेक्ट कर दिया है। क्लियर। नाउ पंप के बारे में देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आउटलेट बहुत ऊपर होता है इनलेट से। ये इनलेट हो गया 1, आउटलेट हो गया 1। ओके, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इसके हम Q और W के हमें साइन कन्वेंशन डिनोट करने। तो पंप गर्म होता नहीं है तो उसमें से Q जाता भी नहीं है, तो Q को हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ओके, और W मतलब वर्क हम पंप को दे रहे हैं, मतलब पंप वर्क को कंज्यूम कर रहा है, तो W निगेटिव आएगा। ओके, बाकी सारा इक्वेशन एज इट इज। क्लियर। ये यहाँ पर H1 लिखना भूल गए, बाकी सारा इक्वेशन एज इट इज, सिर्फ W को माइनस कर दो और Q को जीरो कर दो। ये हो गया पंप पंप के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब दूसरी बात है, दो पंप है, एक वाटर पंप रहता है और एक अपना स्टीम का रहता है। तो वाटर पंप में क्या होता है, मतलब जो हमारा बोर में रहता है, उसका टेम्परेचर का कुछ लेना देना नहीं होता। ये H1 को हम लिख सकते हैं U1 प्लस P1 V1, H को लिख सकते हैं, और H2 को U2 P2 V2। अब देखो वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा बोर में नीचे, उतने टेम्परेचर ऊपर रहेगा बराबर। टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं, टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी क्या, व्हाट इज जूल्स लॉ से कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब U1 और U2 सेम रहेंगे। U1 क्या, इंटरनल एनर्जी एट सेक्शन 1, मतलब जो अंदर है वो, और U2 क्या, इंटरनल एनर्जी एट सेक्शन 2, मतलब जो पानी बाहर आ रहा है वो। तो U1 और U2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, P1 V1 प्लस GZ1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2, Q जीरो है, इक्वल्स टू, इधर बचेगा, मैं इधर लिख नहीं सकता तो मैं बोलता हूँ P2 V2 प्लस GZ2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस W। ये हो गया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर वाटर टर्बाइन। वाटर टर्बाइन में क्या होता है कि टेम्परेचर जो बोर में या वेल में जो नीचे पानी है उसका टेम्परेचर, और जो पानी बाहर आ रहा है पंप से हमें मिल रहा है उसका टेम्परेचर सेम रहता है। मतलब जो सेक्शन 1 है, मतलब जो वेल में पानी है उसकी इंटरनल एनर्जी, और जो पानी हमें मिल रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। तो U1 और U2 कैंसिल हो गया, P1 V1 यहाँ पर P2 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर वाटर पंप। क्लियर। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे हमने कवर कर ली। अब इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो हमने इतने सब डिवाइसेस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल लेंगे, और इसमें से डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, 8 मार्क के लिए आएगा, 9 मार्क के लिए आएगा, और एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। ओके, थैंक यू।